Fans of Rahul Bhatt can rejoice as his much acclaimed film Kennedy, directed by Anurag Kashyap, is ready to be streamed on Z5 in sometime in February. Uh, we are in conversation with gifted actor Rahul Bhatt, who commands attention and does not demand it, whose silences speak louder than words on screen. Thank you, Rahul, for talking to us. How sweet. Thank you for such a, extremely lovely and nice introduction. No, you deserve it. So, Thank you. so Thank you. going back to Kennedy, when you first read the script, was there something about it that disturbed you and something which struck an emotional chord? Yeah, I mean, when I first read the script, of course, it was a very disturbing film, but also I was excited to kind of play such a complex character. And I was thinking, wow, oh, I got to play something like this is in an Anurag Kashyap film is itself it's a blessing, I think. So I was very excited, but मेरे को ये भी पता था कि बहुत सारा काम करना पड़ेगा, आप मर गए. But I love doing work and I love working with such interesting directors who demand so much from an actor. And when a director gives 100%, then as an actor also you feel like, okay, you should give 100% because तब मजा आता है. हम्म पर ऐसा जब करेक्टर होता है, डू यू थिंक इट समवेयर टेक्स अ साइकोलॉजिकल टोल एंड हाउ डू यू देन स्नैप आउट ऑफ करेक्टर, हाउ डू यू इंश्योर कि ये मेरे साथ घर ना जाए भाई? या वो तो जाता है. थोड़ा बहुत जाता है घर और थोड़ा बहुत रह जाता है. हाँ, ये आई मीन particularly this role of Kennedy, I think that मतलब अपने सिस्टम में से निकालने में भी थोड़ा सा टाइम लगा, बट ठीक है, पर मजा भी तो उसी में है ना. But you saying कि it was you felt that you will have to work a lot for this character. तो क्या काम करना पड़ा actually? नहीं, एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन थी. पहले जब मैं अनुराग से मिला तो उसने बोला, ओ लेट्स डू दिस, आई हैव समथिंग इन माइंड, तो तू पतला हो जा एकदम. एकदम घोस्ट बन जा, इनविजिबल. तो मैं 3-4 हफ्ते में, एक आध महीने में लग गया पतला होने में. फिर एक दिन उसने मुझे फोन किया, बोला अरे इधर आ जा, मुझे कुछ बात करे. मैं गया उसके घर पे. मैं तो ऑलरेडी 5-7 किलो कम था. तो बोले, तू क्या कर, मैं तो घोस्ट बन रहा हूँ. बोला नहीं 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 नहीं, मोटा होना है उल्टा. मैं कहा, यार बड़ा पागल इंसान है, मैं ऑलरेडी पतला हो रहा हूँ इतना, अभी तो बोल रहा है नहीं वी हैव टू पुट ऑन वेट. मैं कहा प्लीज मेक योर माइंड. फिर उसने वो बुल हेड एक पिक्चर मुझे दी. बोला, नहीं नहीं, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस. तो देन ऑफ कोर्स देन आई हैड टू पुट ऑन वेट. सो खैर, वेट पुट ऑन और यहाँ लूज वेट, इट्स नॉट अ बिग डील, बट जो इसकी जो कैनेडी की जो साइकोलॉजी है, उसका जो उसकी थिंकिंग है, उसके दिमाग में घुसना कैनेडी के, वो थोड़ा सा मुश्किल था बहुत ही, क्योंकि बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर है. मुझे नहीं लगता कि डिप्रेस है, मगर तो डिप्रेस तो होगा ही. उसकी बॉडी में जो भी रहेगा डिप्रेसिव हो जाएगा. हाँ, बहुत डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ रीच देयर. इट वाज क्वाइट अ टास्क. But for someone who comes from a Jammu and Kashmir, which has seen so much violence, what is your first response to violence and a violent character? I hate violence. I think it's absolutely is the worst thing that can happen to a human being, because violence, any kind of violence, cannot be justified. It's something that फिर आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो ना, आप तो मतलब एनिमल हो. एनिमल लोग भी अपनी वायलेंस तभी करते हैं जब उनको कुछ जरूरत होती है. और मे बी जस्ट बिकॉज इट्स एन एनिमल इंस्टिंक्ट. बट मुझे लगता है इफ यू हैव अ कॉन्शियस माइंड एंड you can think, I think that violence is the worst trait that a human can have. Then when you're playing such a character, आपने कहा कि there is no justification for violence. How do you justify your character? Do you justify your character? I have not seen the movie, unfortunately. So, but how do you see it? No, there is no justification that can be given to such a violent character, but as an actor, one has to be an advocate of a character. One has to defend him. So that becomes the task, and rather that is a very difficult task for an actor. क्योंकि
कितना भी वो गंदा घटिया इंसान हो, उसके अंदर कुछ वो दिखना चाहिए जिससे आप, जिसको आप रिलेट करते हो कि, so while playing a character there is something that you have to really catch on to a character. You have to make him real, make him at the end of the day, कोई कितना भी घटिया इंसान हो, सबसे बड़ा विलन हो, है ही तो इंसान एट द एंड ऑफ द डे। सो तो उसको कैच करना वो एक बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, आई थिंक। और एक्टर जब इतना गुड लुकिंग हो तो कहीं ना कहीं रिलेटेबिलिटी अपने आप आ जाती है क्या? लुक्स का कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट एक्टर जब गुड लुकिंग हो तो और ज्यादा परेशानी होती है उस एक्टर के लिए, बिकॉज ही हैज टू गेट आउट ऑफ दोज, यू नो, दोज बाउंड्रीज ऑफ लुक्स। ही हैज टू, और बाय द वे मुझे नहीं लगता कि मैं गुड लुकिंग, That's being मैं एवरेज हूँ। no, not at all. But talking of Anurag Kashyap, आपने कहा कि कभी बोला पतले हो जाओ, कभी बोला मोटे हो जाओ. So how he's a director who kind of resurrected you as an actor. तो उनके साथ कितने क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं या नहीं होते हैं? How do you channelize your navigate your way with him? अनुराग एक ऐसा आदमी है, आपको किसी भी एक्टर को, मुझे क्या, किसी भी एक्टर को कभी जिंदगी में क्रिएटिव डिफरेंस हो ही नहीं सकता उसके साथ, बिकॉज वो एक तो सिंप्लीफाई कर देता है बहुत कुछ, उसके साथ सब आसान लगता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैरेक्टर लगता है कि बहुत आसान है, क्योंकि कुछ है मैजिक उसमें, उसके उसके इंस्ट्रक्शंस में, उसके लिखे हुए कैरेक्टर्स में, उसकी डायरेक्शन में, उसके एक्सप्लेनेशन में एक अजीब किस्म का मैजिक है। तो हर मुश्किल से मुश्किल चीज लगती है कि बहुत आसान है। ही सिंप्लीफाइज एवरीथिंग, आई डोंट नो हाउ, कुछ है वो उसमें, उसमें कोई एक मैजिकल वॉन्ड है उसके पास की, ऐसे घुमा देता है और सब सिंपल हो जाता है। But is there some magic he sees in you, which maybe other directors are not able to see? ये तो उसी से पूछा जा सकता है, लेकिन क्यों, विक्रम मोटवानी ने भी देखा कुछ, तो उसने मुझे ब्लैक वॉरेन दी। हाँ, वीर मिश्रेवन ने भी देखा, उसने भी, मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स मुझ में कुछ देखते हैं। But do you feel Kennedy has been somewhat of a game changer? Did it open doors for Black Warrant and all? Yeah. I definitely think that Kennedy has done already a lot for me, because जिन्होंने भी देखी है फिल्म, वो कुछ मुतासिर तो हुए हैं, उनको कुछ तो मतलब लगा है। एंड what can a film do for an actor? I think whatever a film can do for an actor, Kennedy has done already for me. But a movie came in 2023. Yeah, it went to Cannes Film Festival. Yeah. So any regrets on it not finding a theatrical release? It's streaming on an OTT platform. Of course, OTT is the biggest thing right now. देखो, it will be extremely, what we say, it will be, I would be lying if I say कि अरे यार नहीं थिएटर में नहीं, I have no regrets. वो सब ठीक है, बट तो होगा ही, एज एन एक्टर यू फील दैट, बट आई फील कि जो भी होता है वो पता नहीं क्यों अच्छे के लिए होता है, वो भगवान ही जानता है। और मुझे लगता है कि हमको सिर्फ ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज ना तो मेरा चाचा कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर है, ना मेरा ताया कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, मैं आया हूँ कश्मीर से, मेरा कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में, और इतने बड़े डायरेक्टरों ने मुझे, मेरे सर पे हाथ रखा है और मुझे काम दिया है, मुझे इस लायक सोचा है कि ठीक है ये इंटरेस्टिंग एक्टर है या जो भी है, ना मैंने फिल्म स्कूल किया है ना कुछ, बट आई फील दैट आई शुड बी ओनली थैंकफुल टू गॉड कि यार चलो ये फिल्म भी आ रही है, देर से आ रही है मगर कम से कम आ रही है। better late than never. हाँ, तो अब उसके बाद सिर्फ रोते रहे कोई कि बोले अरे नहीं, तो वो कुछ ज्यादा ही, एक हद तक रोना ठीक है, उसके बाद वो लगता है कि बहुत अनग्रेटफुल है। सो आई फील आई एम वेरी ग्रेटफुल कि चलो ठीक है आ रही है फिल्म। But आपने कहा कि you are not from a film school, but I mean you're such a natural actor and you get the minor inflection so right.
तो लेकिन फॉर द पार्ट ऑफ कैनेडी कुछ ऐसा था विच यू हैड टू अनलर्न, कोई एक्टिंग इंस्टिंक्ट जो अनलर्न करनी पड़ी हो? मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात हम्म, जो है किसी भी एक्टर में, वो यही शब्द है जो आपने अभी यूज किया, अनलर्न। okay. ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो शाना कौवा होता है वो एक्टिंग में नहीं चलता। यू कैन बी ए शाना कौवा, आई नो एवरीथिंग। वो एटीट्यूड एक्टिंग में बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। चाहे कितना भी बड़ा तूफान ऑस्कर विनर एक्टर हो, वो हमेशा एक, बिकॉज एक्टिंग इज नई चीज को जानना, नई चीज को एम्ब्रेस करना, नए कैरेक्टर को पहचानना। वो तभी होगा जब आप अपना पुराना कैरेक्टर कैरेक्टर इरेज करोगे, जब आप अपना ब्लैक बोर्ड साफ रखोगे, तभी उस ब्लैक बोर्ड पे कुछ और लिख सकते हैं। वरना अगर वो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो फिर कैसे? जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी बहुत सारी, जैसे आप लैंग्वेज बोलते हो, तो बच्चा फट से सीख लेता है कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो मराठी हो, कश्मीरी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, बच्चे कैसे सीख लेते हैं? बड़े होके वही बच्चा नहीं सीख पाता वही लैंग्वेज। इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर हिम। बचपन में नेचुरली वो शुरू हो जाता है, पंजाबी तो पंजाबी में शुरू हो जाता है, कश्मीरी में शुरू हो जाता है, मराठी में शुरू हो जाता है। पर जब वो बड़ा हो जाता है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू काइंड ऑफ लर्न समथिंग, बिकॉज बिकॉज उसका ब्लैक बोर्ड ऑलरेडी भरा हुआ है, उसकी हार्ड डिस्क में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। नई चीज डालना बड़ा मुश्किल है। फॉर एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलर्न। अनलर्न करके ही यू कैन लर्न, यू कैन एम्बाइब, यू कैन गेट अदर थिंग्स। And for your Hollywood project, Lost and Found in Combe, correct? या आई एम वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। वो Yeah. बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बहुत तो अच्छी बनी है। वी जस्ट तो सॉ। उसमें भी आपने यही फिलोसफी फॉलो करी हाँ, ऑफ अनलर्निंग? वो अलग ही कैरेक्टर है, वो तो एकदम ही अलग कैरेक्टर है फ्रॉम कैनेडी। एंड आप देखोगे बहुत जल्दी, आपको मजा आएगा, आई कैन प्रॉमिस यू। बहुत कब देख पाएंगे? ऑफ कोर्स बहुत कैनेडी जल्दी, तो मेरे हम ख्याल से जल्दी देख पाएंगे। व्हेन बहुत कैन वी जल्दी, सी? बहुत जल्दी। अभी एडिट खत्म हो गया है, वी जस्ट सॉ द फर्स्ट कट, एंड whoever has seen the first, they loved it, तो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से आपको हम and बता देंगे। and we are hoping that it has not given you a short shrift. अक्सर इंडियन एक्टर्स गेट अ ब्लिंक एंड मिस रोल, हम No, बड़ी no, no, it's a एक्साइटमेंट full होती है। set. It is the main role. Oh wow, that's great. Yeah, yeah. बट कैनेडी जो है अब मतलब 2023 में आई, ऑब्वियसली आपने शूट उससे भी पहले करी होगी। इज इट अ डिस्टेंट मेमोरी नाउ और इज इट स्टिल फ्रेश ऑन योर माइंड? Kennedy is some that kind of a character that मैं एक्चुअली उसके बारे में बहुत कम सोचना चाहता हूँ, मगर वो उसके अंदर कोई बात है, वो बार बार, यू कैन नेवर फॉरगेट दैट। इट हैज इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आज से if few years from now you were to look back at Kennedy, what would you say it has changed in you both as an actor and a human being? I would say that this was definitely a big milestone in my life. एक तो it took me to Cannes red carpet, which is itself a dream for any actor, because लोग कहते हैं कि अरे सबको तालियां बजती है वहां पे, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर वो ठीक है, बजती होंगी, मगर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। 20,000 फिल्मों में एक फिल्म सिलेक्ट होती है, और उसके बाद वो वहां पे, वो किस्मत होनी चाहिए, बहुत स्टार्स अलाइन होने चाहिए। तो जिस रेड कार्पेट पे इतने सबसे बड़े स्टार्स, हमारे जो आइकॉन्स थे, वो चले हैं, उस रेड कार्पेट पे मैं चल पाया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ नहीं आ सकता दिमाग में। लेकिन कैनेडी को मैं हमेशा याद रखूंगा कि इसने ये तो करवाया मेरे लिए। बट आप कान तो अब कई बार जा चुके हैं, एंड माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ऑडियंसेस देयर are no, they have a better understanding of cinema than audiences at Indian film festivals? नहीं, ऐसा नहीं है, बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बेटर ऑडियंस इज ऑडियंस एवरीवेयर। आप उनको कोई भी एक इमोशन दे दो जो उनको दिल पे लगे, तो कोई भी आदमी रोएगा। एक रोते हुए बच्चे को देखकर कौन नहीं रो सकता है? I mean, it's a human emotion. Human emotions all over the world are same. Emotion are universal. तो बस यही है कि थोड़े इवॉल्व सोसाइटी में क्या होता है कि वो लोग थोड़ा सा वो ऐसी फिल्मों की भी कदर करते हैं।
हम लोगों के यहाँ पे वो एवेन्यूज नहीं है अभी तक कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि कंट्री में भाई हम ही कुछ कर रहे हैं। ये तो आजादी से हमारी 100 साल से ही चलता आ रहा है। सिनेमा में हमने ग्रेट दिए हैं, हमारे यहाँ सत्यजीत राय भी रहा है, हमारे यहाँ ऋत्विक घटक भी रहा है, गुरुदत्त भी रहा है, बिमल रॉय भी रहा है। इतने ग्रेट डायरेक्टर्स रहे हैं, बासु चैटर्जी भी थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ शबाना आजमी भी है, समिता पाटिल भी थी, नसीरुद्दीन शाह भी था, फारूक शेख भी था, अमोल पालेकर भी था। ऐसा नहीं कि हम ही कुछ कमाल, कुछ नया परल सिनेमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पहले से चलता आ रहा है। और ओमपुरी भी था। तो हमारे यहाँ भाई बहुत ब्रिलियंट काम कर चुके हैं लोग पहले, हमसे बहुत पहले। हम क्या, हम तो बच्चे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं अभी। हम तो शुरू भी नहीं हुए हैं। मुझे लगता है मैं तो शुरू भी नहीं हुआ हूँ अभी, तो बहुत काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऑडियंस ऑडियंस है तभी तो ये लोग थे। तो वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने कहा कि इमोशंस आर यूनिवर्सल, तो कैनेडी कौन सी हमारी इमोशन को टच करेगी? कैनेडी एक अजीब सा कैरेक्टर है। आपको जब फिल्म खत्म हो जाती है, लोग रोने पड़ते हैं उसके चक्कर में। कैनेडी, दे फील बैड अबाउट हिम काइंड, एनकाउंटर। बट यू फील फॉर हिम। दैट इज a win for the filmmaker. That is why this filmmaker is such a genius. वो आपको आईना दिखा रहा है कि आप ऐसे आदमी के लिए रो रहे हो, तो क्या गलत है आप में, कुछ गलत चल रहा है क्या? So तो can we then say it is anatomy of violence? well, you can say that, but it is human emotion is very strange. It's very complex. हम लोग बहुत अजीब है। हम इमोशन को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। हमारे अंदर एक इंसानियत है। तो वो जो इंसानियत है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि कभी कभार आपको बुरे आदमी के लिए भी अच्छा लगता है। But he finds closure and finds redemption by the end of it. नो। Oh. Okay, लेकिन अब final question, because I think I can the flashing messages. What do you promise viewers? I'm sure there's going to be lots and lots of them, but रियलिटी, it's a reality. आईना दिखा रहे हैं ये फिल्म आपको कि ये सच है, यही हो रहा है आपके साथ, ऐसा Or, कुछ। and it makes a strong political statement as well. वो तो आप फिल्म देख लीजिए। Because I've seen a short reel, and that's very Yeah, compelling. Yes. it's very, very, very compelling for sure. Yeah. Right, Rahul. Thank you so much, and a pleasure as Thank always. you, And wishing thank you you. all the best, and hope Pleasure many, talking. many more avenues open. Keep opening for you. आपका And आपका Kennedy, साथ, आप जैसे लोगों का ही साथ है मेरे ख्याल से, मेरे लिए, मेरे साथ। तो ये हो रहा है अच्छा। no, you're a brilliant actor, and you deserve all the best. Thank Thank you. you.